Good evening, all distinguished guests, speakers, and participants. It is a glorious moment to extend my warm wishes on behalf of the Vijay Social Welfare Society. I want to convey my heartfelt gratitude to Choitram Hospital and Research Center for accepting the idea and believing on us for conducting this virtual session of creating awareness on the occasion of World Organ Donation Day. I feel proud to represent an amazing non-profit organization where we train a lot of youngsters who are going to be our future. All the members and the mentors are the ones to be thanked for organizing such a huge function and event. We all have assembled here today to motivate and make people aware about organ donation. Organ donation is something that is more important than what people realize it to be. It is important for the society as a whole and as well as for individuals to think about it. There are thousands of patients waiting every day for an organ transplant, but they only keep waiting because of lack of donors and more than that, lack of awareness of the same. In fact, for people suffering with end stage organ failure, it is a matter of life and death and a very traumatizing situation for the family members. It carries the power to enhance the lives of people and change them forever. As the need for organ donors is growing day by day, it has become very necessary to increase awareness about the same. There are a lot of misconceptions regarding this subject, and we must do our best to clear them as soon as possible. Organ donation is a sacred service that any human being can do. Many people want to do this good deed, but lack of awareness lets them unable for the same. They either back out or get deceived by illegal organ traders. Thus, it is more than important that the correct information is given out regarding the same, and our speakers are here to help us out. BSWS believes in engaging the youth, students, and providing them with this information is necessary to make an informed decision about organ donation. So, without further ado, I would like to heartily welcome everybody, including our highly qualified and exceptional speakers, the guests, our dear friends, all the doctors, and the members of the society. We are very fortunate to have all of you present with us. With due respect, I invite our speakers and would like to start the event with the statement, Give life after life. Now I invite Ms. Sanskriti Tare to take over from here. It is a glorious moment to extend my warm wishes on behalf of Vijay Social Welfare Society. I want to convey my heartfelt gratitude to Dr. Ajay Jain for accepting the invitation and presiding over the seminar on Organ Donation Day. Sir is an expert in the field of minimal access surgery and laparoscopic gynecological surgery. Sir did MBBS and MD in General Medicine from MGM Medical College University in Indore in 1984 and 1988 respectively. He did his fellowship in gastroenterology at GB Pant Hospital, New Delhi, and was awarded DM and DNB in 1993-1994. He worked as Senior Research Associate at GB Pant Hospital and later as gastroenterologist at RML Hospital, New Delhi. He joined Choitram Hospital and Research Center Indore as a consultant in 1996 and has been working there ever since. He is currently working as the director of the institute. He was awarded fellowship as a clinical observer in the Advanced Therapeutic Endoscopy Training Program at Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston. He was instrumental in starting the first postgraduate DNB gastroenterology teaching program of Central India in 2006 and has been running it successfully ever since. He was governing council member of the Indian Society of Gastroenterology from 2017 to 2020 and currently he is serving as the treasurer of the society. It is an honor that we share a platform with you and I thank you from the bottom of my heart that you gave us your precious time. We welcome you, sir. Thank you so much. Am I audible? Is my Yes. voice clear? Okay. Thank you so much for generous words about me. And it's really a privilege to talk to all of you on this auspicious day of World Organ Donation Day, which we celebrate every year on 13th of August. And as you rightly said, life beyond life, or Jindagi ke saath bhi aur Jindagi ke baad bhi. This is the motto, and organ donation is going to change the way we are looking at the disease management. In next 15 minutes, I'm going to talk about some of the facts and myth about the organ donation. It was way back in 1967 that the first organ transplant, that was a kidney transplant, was done
After almost like 17 years, it was the first heart transplant was, first liver transplant was done. And about 5 years later, the first heart transplant was done. I'm not sure you have seen that movie. The movie was created on George Bernard, who did the first heart transplant, and it was like putting another horse in the castle and then running it. So if you have one cart run by a horse, moves at a speed of say 20 kilometers. If you put two horse, it moves at the speed of 40 kilometers. And that's what it was done in the initial days of the organ transplant. Since then, a lot of innovation has been done in the field of organ transplant. Unfortunately, India is way behind. और अब मैं जब जो भी बात करूंगा अगले 10-15 मिनट को इंडिया के बारे में करूंगा, क्योंकि हमारी जरूरतें और हमारी आशाएं विश्व के दूसरे देशों से बहुत भिन्न है। और जो सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में ऑर्गन डोनेशन डे पे, दैट इज बिकॉज आवर रिलीजन, आवर मिथ्स एंड आवर बिलीफ। हम सबसे ज्यादा हम सब लोग जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म में बहुत विश्वास करते हैं, और इस विश्वास के कारण हम बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो कि साइंटिफिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है। और उसमें से एक है कि यदि हमने हमारे शरीर का कोई हिस्सा डोनेट कर दिया या हमारे शरीर का कोई हिस्सा निकाल लिया, तो अगले जन्म में वो हिस्सा हमें नहीं मिलेगा। ऐसा कतई नहीं है। You do not, because the organ, the development is from single cell, and we all know that during those 9 months, every organ develops from that single cell. And this is all proven scientifically that unless you have some genetic disease, you have some acquired disease during the pregnancy, one or the other organ may be defective, but there is no truth that if you donate one or the other organ, the next birth, you will not have that organ. Coming back to the requirement of India, हमारे देश को 1,05,00,000 ऑर्गन्स की हर वक्त जरूरत है, और हर 90 मिनट एक नया मरीज हमारी लिस्ट में जुड़ता है जिसको ऑर्गन डोनेशन की जरूरत है। इन 5 लाख मरीजों का मतलब क्या है? ये 5 लाख वो मरीज हैं जिनका कोई ना कोई एक ऑर्गन फेल हो चुका है, और उनका अगला कुछ महीने या कुछ साल उस फेलियर ऑर्गन के साथ डॉक्टर कर तो सकते हैं, इंक्रीज तो कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली यदि उनको ऑर्गन नहीं मिलेगा तो उनकी लाइफ एक्सटेंड नहीं हो पाएगी। मैं लिवर विशेषज्ञ हूं, मैं आपसे लिवर की बात करता हूँ। यदि लिवर फेलियर का मरीज को यदि लिवर नहीं मिलता है तो उसकी एवरेज लाइफ लिवर फेलियर के बाद 1 साल से 5 साल होती है, डिपेंडिंग ऑन किस स्टेज में हमारे पास लिवर फेलियर है। इसी प्रकार किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं, यदि उनका डायलिसिस के ऊपर कितने समय तक रहेंगे, पर डायलिसिस के लिए हर दूसरे दिन अस्पताल में आना, 4 घंटे अस्पताल में रहना, अस्पताल में रहने के दौरान होने वाली तकलीफें, आपके साथ आने वाले व्यक्ति की तकलीफें, आपका जो बिजनेस है उसके अंदर तकलीफें, आपकी नौकरी उसमें तकलीफें, और यदि आप उसकी जगह उसको एक किडनी ट्रांसप्लांट करके देते तो अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजर बसर कर सकता है। भगवान ने शरीर में सभी ऑर्गन डबल बनाए, किडनी 2 दी है हमको, भगवान ने आंखें 2 दी है, कान 2 दिए हैं, पर भगवान ने कुछ ऑर्गन एक ही दिए हैं, और उसमें से हार्ट और लिवर ऐसे हैं जो एक है। तो किडनी हम एक लिविंग ऑर्गन में से, किडनी के 2 में से यदि आप एक किडनी दे देंगे तो इतना रिजर्व भगवान ने या हमारे प्रकृति ने हमको दिया है कि दूसरी किडनी से आप अपनी पूरी जिंदगी नॉर्मल तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। कई बार हमको एक किडनी, यदि कोई बीमारी है, कोई कैंसर, तो हम एक किडनी वैसे भी निकाल देते हैं, और व्यक्ति उस एक किडनी से पूरी तरह से अपनी जिंदगी गुजर बसर करता है। इसी तरह हमारा जो लिवर होता है वो 1.5 किलो का होता है, अराउंड 1.5 kg का। इट्स लाइक इन स्पंज स्ट्रक्चर, और हमारी जो जरूरत है नॉर्मल जिंदगी की वो 600-650 ग्राम के लिवर से हो सकती है। तो यदि हम हमारे लिवर का आधा हिस्सा डोनेट कर दें और किसी दूसरे व्यक्ति को वो लिवर लग जाए तो उसकी जिंदगी भी उस लिवर से गुजर बसर कर सकती है। फिर भगवान ने हमारे लिवर को इतनी ज्यादा रीजनरेटिव कैपेसिटी दी है कि यदि हम उस लिवर को अलाउ करें रीजनरेट के लिए, तो जिस व्यक्ति ने अपना लिवर आधा दिया है, अगले 2 से 3 महीने में वो लिवर काफी ज्यादा रीजनरेट होकर ऑलमोस्ट नॉर्मल शेप में आ जाता है। इसी तरीके से जिस व्यक्ति को आधा लिवर मिलता है उसका भी लिवर रीजनरेट हो जाता है। तो एक व्यक्ति जो कि कई महीनों से अस्पताल के चक्कर लगा रहा था, बार बार अस्पताल में भर्ती हो रहा था, लिवर की बीमारी के कारण उसको परेशानी हो रही थी, अब वो व्यक्ति नॉर्मल लिवर के साथ अपने काम कर सकता है, स्कूटर चला सकता है, कार चला सकता है अपनी सारी जिंदगी, और उसको कुछ ही दवाइयां लेने की जरूरत होती है, बाकी सभी दवाइयां बंद हो जाती है। इसी तरह से किडनी के अंदर सभी दवाइयां बंद हो जाती है। तो यदि मैं अपने स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो हमारे देश में जो 5 लाख ऑर्गन हर साल चाहिए, उसमें से करीब 1.75 लाख किडनी चाहिए, अराउंड 50,000 लिवर चाहिए, अराउंड 20,000 के करीब हार्ट चाहिए। अब हार्ट तो एक होता है, तो इसलिए जो डोनेशन होता है, ऑर्गन डोनेशन होता है, उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है लिविंग डोनेशन, एक होता है डिजीज डोनेशन।
लिविंग डोनेशन वो होता है जिसमें आप कोई भी जीवित व्यक्ति अपने शरीर का कोई हिस्सा विलिंगली, जो दो है उसमें से कोई एक हिस्सा देना चाहे तो दे सकता है। और जो सबसे कॉमन लिविंग डोनेशन है वो है किडनी, क्योंकि हमारे पास दो किडनी होती है, हम अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य की दोनों किडनी फेल हो गई है तो हम अपनी एक किडनी दे सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरा लिविंग डोनेशन जो सबसे कॉमन है वो है लिवर। जब हमारा लिवर इतना बड़ा है तो हम यदि हमारे लिवर का आधा हिस्सा दे देते हैं तो दो व्यक्ति का काम आसानी से चल सकता है। तो इसको हम बोलते हैं लिविंग डोनर ऑर्गन डोनेशन। इसमें डोनर लिविंग है, डोनेशन के बाद वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीता है, उसको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है, और जिस व्यक्ति को किडनी या लिवर मिलता है वो। दूसरा जो डोनेशन होता है उसको हम बोलते हैं डिजीज ऑर्गन डोनेशन। इसके अंदर हम वो ऑर्गन्स होते हैं जिसमें व्यक्ति की ब्रेन डेथ हो जाती है। अब हमारे सभी विश्व में सभी जगह पर डेथ को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं ब्रेन डेथ और दूसरे को बोलते हैं कार्डियक डेथ। ब्रेन डेथ का मतलब ये होता है कि आपके ब्रेन के फंक्शन इरिवर्सिबली बंद हो चुके हैं। अब आपकी जो लाइफ है वो बिना ब्रेन के है, मतलब आप एक वेजिटेटिव स्टेट में। पर इस स्टेज में आपका हार्ट काम कर रहा होता है, आपके लंग्स काम कर रहे होते हैं, आपका लिवर काम कर रहा होता है, आपकी किडनी काम कर रही होती है, आपका पैंक्रियास काम कर रहा होता है, और आप अपने ये सारे ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। इसके अंदर से जो हार्ट होता है, क्योंकि हार्ट के अंदर तो हम कोई हिस्सा कर नहीं सकते, तो हार्ट हमेशा से जो डिजीज डोनर होता है उसी का ट्रांसफर होता है। अभी आपने देखा होगा कोविड में, कोरोना में कई लोगों के लंग फेल हो गए और जो डेथ का प्रमुख कारण था वो फेलियर ऑफ लंग था। इसमें से कुछ मरीजों को लंग ट्रांसप्लांट से बचाया जा सकता। ये लंग किस कहां से आए? जो व्यक्ति डिजीज थे, जिनकी डेथ हो चुकी थी, जो ब्रेन डेथ थे, उन्होंने ये ऑर्गन डोनेट, उनके परिवार वालों ने जब ये ऑर्गन डोनेट किए तो ये लंग उस व्यक्ति को मिले जिसके ऑर्गन फेल हो चुके थे और आज वो नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो यदि मैं अपने देश की बात, हमारे यूथ को, हमारे एजुकेटेड लोगों को आगे आना पड़ेगा, फैमिलीज के अंदर ये बताना पड़ेगा कि यदि किसी व्यक्ति की ब्रेन डेथ हो चुकी है तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल। एंड ऐसे व्यक्ति यदि अपने ऑर्गन डोनेट करते हैं तो दे कैन लिव अगेन, though in not their body, but they will live in 8 other bodies. So one person can save life of 8 people. How 8 people? One heart, one liver. Sometimes he can save life of 2 people with a split liver transplant, pancreas, 2 kidneys, 2 corneas, and now the concept of 2 lungs. You can even transplant 1 lung or you can transplant both the lungs. So you can save life of 8 people. And then आपको पता है हमारे देश में अंधत्व जो कॉर्निया है ट्रांसप्लांट, हम सारे देश में 50,000 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर पाते हैं, पर हमारे देश में 12 करोड़ लोग अंधत्व का शिकार हैं। मैं कितने करोड़ का कॉर्निया की जरूरत है, पर हमारे यहाँ अभी भी आई डोनेशन के नाम से बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट्स हैं। अब मैं बात करूं मिथ्स और फैक्ट्स की, तो जो सबसे बड़ा मिथ और फैक्ट है वो ये है कि हम यदि ऑर्गन डोनेट करेंगे तो हमारी धार्मिक जो भावना है उसमें कुछ ठेस आएगी, या हमारा पुनर्जन्म में कोई तकलीफ आएगी, या हमारे आने वाले जो क्रियाकर्म उसमें कोई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में वैज्ञानिक रूप से ये प्रूव हो चुका है कि ये बिल्कुल सत्य नहीं है, न तो कोई व्यक्ति किसी ऑर्गन के डोनेशन से उसका कुछ होगा। दूसरा, अब मुस्लिम देशों में जहां पे पहले ऑर्गन डोनेशन नहीं था, जहां ये माना जाता था कि आप ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते, आज उन सभी देशों के अंदर ऑर्गन डोनेशन हो चुका है। तो जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है अवेयरनेस की, और इस अवेयरनेस की कि जो व्यक्ति ऑर्गन डोनेशन के लायक है, जिनकी ब्रेन डेथ हो चुकी है, उनको हम इनकरेज करें, ब्रेन उनके परिवार वालों को, क्योंकि ये एक बहुत कठिन समय होता है। एक तरफ तो घर में रुदन मातम का माहौल होता है क्योंकि परिवार का एक यंग आदमी परिवार छोड़ के जा रहा होता है, उसकी मृत्यु होने वाली है, पर उसी समय यदि हम अपने दिल और दिमाग पर काबू रख के इस बात की कोशिश करें कि क्या यह व्यक्ति 8 दूसरे व्यक्तियों में जीवित रह सकता है, that's the key question. But this man will bring life and happiness to 8 other families. Though there is a period of mourning in your family, but there is a period when you will rejoice that 8 new families will join you. They will become part and parcel of your family, and they will have happiness. And it's not that you have done it voluntarily. There are 2 conditions where the brain death is commonly being declared, and which are more common. One is brain hemorrhage, because in the brain hemorrhage, suddenly the brain, after some time, the brain stops functioning completely, and the doctors declare that now he is brain dead. There are no chance of his brain revival. If this person, even if he live for say 4 hours to say 4 months, he will have a vegetative life because he will have organ perfused because of the medicines, because of the ventilator. But he doesn't have any saneful life, and these are the people who can. Similarly, after road traffic accident, when there is an extensive damage to the brain, the chances of recovery are 0. Then doctors declare brain death.
And these are the people who can be cleared. Now the people have come up even after cardiac death. If you have a sudden cardiac arrest and you decide to donate, within 30 minutes of cardiac death, if you can retrieve the organ, these organs can help people living another 20, 25 years by retrieving their liver, by retrieving their 2 kidneys, pancreas. Now there are Professor Mrs. Chamania is on the show, and she will be talking about the skin donation and how this skin donation has changed the life of the burn patients across the globe. So a little thinking, a little understanding, and a little scientific knowledge can change the life of many people. In last, I will just summarize 3 things. Organ donation is the need of the day. We are losing almost 4,80,000 people every year waiting for the transplant because they do not have organ. Most of the organ donation in this country is all life related, where husband gives to the wife, or wife gives to the husband, or children give to the parents, or parents give to the children. But if you really make an impact on disease donor, liver transplant, kidney transplant, or disease donor transplant, you can change the fate of these 5 lakh people who are awaiting the liver transplant, kidney transplant, heart transplant, pancreatic transplant, lung transplant, cornea transplant. And I would again appeal to all the people who are listening to this show that there is no truth that after the donation, next time you will be born with this thing. Secondly, there is nothing like a disfigurement. Many of us have a lot of respect for our rituals after the death, and we do not want any disfigurement. And it's absolutely right. After the transplant, if you take out the organs, there is absolutely no disfigurement of body. You can have absolutely normal looking body for all the rituals and rites you want to do on the dead person. And thirdly, I'll encourage youth to donate. Now there is another, the last 1 minute, the concept of body donation. The medical science have advanced only because of the body donation, because a lot of things have been learned. We have come to know after the postmortem, on the autopsies, and in the anatomy dissection halls, when the students learn on the dead bodies. And the bodies donated by the people have taught millions of doctors across the globe to treat the ailing population. And this donation is in a large way help understanding large number of diseases in the society. There are many diseases which we realized after the postmortem in the anatomy dissection, oh, this person must have died because of this disease. And the diseases have been described for the first time after the autopsies. We take the example of COVID. Initially, we thought it is all pneumonia. But when we did the autopsies of some of these patients, we realized it is not pneumonia. It is the blood clotting which has damaged the liver, which has damaged the lungs extensively. And then we realized that we have to change our treatment strategies. And by the change of treatment strategies, we could save many people. And the last, I will again appeal to all the people that organ donation is a noble thing, and it will add to the joy of the family who is donating, and it will add the joy to the families who are receiving it. जिंदगी के बाद भी जिंदगी है, and हमारी प्रकृति ने हर चीज को रिसाइकल करने के लिए बताया है, और हम ह्यूमन बॉडी को भी रिसाइकल करना चाहिए, रिसाइकल होनी चाहिए. And I will encourage all of us who are listening to this to pledge for the organ donation, and all of us should pledge for donation of the body after the death. Thank you so much. And if there are any questions, I'll be happy to take those questions. Thank you. Thank you so much, sir. Very informative, and there were so many things that we actually had no clue about. I'm sure everybody listening to this and people who are on live are very clear about all these things now. Questions will be taken afterwards. The speakers have already said. Now I would request Shrish to continue. A warm welcome to everyone here on behalf of Vijay Social Welfare Society. It brings me great pleasure to introduce our second guest, Dr. Shobha Chimania. Dr. Chimania is a general surgeon and the chief of burn unit at the Chaitram Hospital and Research Center, Indore. She is one of the finest doctors in the city and is known for her excellent patient care. She is also the co-founder of a UK-based charity called Interburns, which is committed to improving burn care in low and middle income countries. Dr. Chimania has been working, teaching postgraduates, doing research,
and supervising postgrad thesis for more than 3 decades at Choitram Hospital. She's also the former president at the National Academy for Burns, India. We are privileged to be in the presence of one of the finest doctors our nation has produced and are looking forward to learning a lot from one of the best in her field. Thank you very much for taking the time out to join us here today. Thank you for your very kind introduction, Shirish. That was very generous of you. May I share my presentation because I thought pictures would help you to understand. So I'm going to talk about skin donation, which is something very new. Our city has been doing it now for exactly 10 years. We started a skin bank in 2011, but Mumbai had its first skin bank at Sion Hospital another 20 years before. So they are the pioneers, and then ours is the third bank in the country to have started in 2011. Let me introduce what is the burn problem, because you heard about the other organs, but skin, let me tell you that it is the biggest organ. शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है जो पूरे शरीर को ढक के रखता है, और इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि वो आपके शरीर को आसपास के कीटाणुओं से बचाता है, टेम्परेचर कंट्रोल रखता है, पसीने से सब चीजों का एक्सक्रीशन करता है, वो तो ठीक है, पर इन्फेक्शन नहीं होता है अगर आपकी त्वचा इंटैक्ट है। तो यदि जल जाती है मतलब त्वचा में चोट लग गई है, तो फिर वो इन्फेक्शन को प्रोन हो जाती है, और इन्फेक्शन ही सबसे बड़ा कारण है इन मरीजों के कॉम्प्लिकेट होने का और इनके ना बचने का। और दूसरा, ये वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल कंडीशंस इन द मेडिसिन। सबसे ज्यादा यदि अपन सबको कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो झटका लग गया होगा, घर में काम करते हैं तो कभी थोड़ी सी लग जाती, आप अपने को मालूम है चोट लगती है तो बहुत उस दर्द का आप बचना पड़ेगा। 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, बहुत ही छोटी सी एरिया है, पर इसकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, और 65% टोटल इंसिडेंट बेयर करता है। तो ये वर्ल्ड की बर्न पॉपुलेशन की वजह से इंडिया को इतना बड़ा बना दिया गया है। दिस इज द WHO मैप। हमारे देश में अगर हम गिने तो 1 मिलियन पर ईयर जले हुए मरीज होते हैं, यानी 10 लाख। हमारे ये एक रफ एस्टिमेट है क्योंकि हमारे नेशनल स्टेटिस्टिक्स तक प्रॉपर कलेक्ट नहीं हुए मरीज होते हैं, और उसमें से 1,80,000 नहीं बचते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक जले हुए होते हैं, और करीब 1 से 1.5 लाख ऐसे होते हैं जो कोई डिफॉर्मिटी से या उनके हाथ पैर कट जाने से ज्यादा क्रिपल हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, और उन्हें बहुत लंबे समय अस्पताल में रहने की और रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है। तो इनके लिए थोड़ा हॉस्पिटलाइजेशन कम करने को, और क्या हम इनकी मौतें बचा सकते हैं, इसके लिए हमें त्वचा दान की आवश्यकता है। तो आपने अभी डॉक्टर अजय जैन से ये सारी चीजें, ये सारे शब्द सुने। ब्लड रक्तदान तो हम बहुत समय से जानते हैं, नेत्रदान भी बहुत पुरानी चीज हो गई, बॉडी डोनेशन, किडनी डोनेशन, लिवर डोनेशन, ये आपने अभी सुना, पर क्या आपने त्वचा दान के बारे में सुना था? मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम होगा। सबसे ज्यादा इंसान डरता है कि यदि हम त्वचा ही दान कर देंगे तो हमारे सारे अंग बाहर निकल आएंगे। तो मैंने ये एक मरीज की पिक्चर बताई है जहां से हमने ये त्वचा निकाली हुई है, तो उनके कोई से अंग बाहर नहीं आ रहे हैं, कोई सी मसल भी नहीं दिख रही है, और कहीं पीठ से भी अगर हम लेंगे तो कोई अंग वहां से नहीं निकलता है, क्योंकि हम केवल 1/10 पार्ट ऑफ द स्किन का जो टोटल हिस्सा होता है, केवल 1/10वां हिस्सा ही ग्राफ्ट के लिए निकालते हैं, जो कि एक बायोलॉजिकल ड्रेसिंग के रूप में जले हुए मरीज के ऊपर लगाने से इसके फायदे ये होते हैं कि इससे हम इन्फेक्शन रोक सकते हैं, जो शरीर के इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स का रिसाव हो रहा होता है उसे रोक सकते हैं, और उनके दर्द का पूरी तरह से निवारण करते हैं, और इन सब की वजह से उनको जिंदगी भी मिलती है। तो यदि हम किसी डोनर से बात करें कि आप कहाँ से स्किन देंगे, तो
पूरी पीठ की स्किन जाती है, और डेथ के बाद जो विजिबल होता है वो तो केवल सामने का हिस्सा होता है। तो कोई विकार हम डोनर स्किन पे नहीं लाने देते हैं। यदि वो पीठ से नहीं देना चाहते हैं तो फिर हम लोग लिम्स को पूरी तरह से, मतलब आगे और पीछे से, केवल नीचे के दोनों पैरों को, जांग से लेके पिंडली के नीचे तक निकालते हैं। क्यों जरूरत है? देखिए, ये इंसान है जिसको करीब 40% जला है, पीठ पे भी जला था। इसकी जिंदगी बचाने के लिए गहरा जला था और इसे हमें त्वचा लगानी पड़ी, और इसे उन सब, और यदि इससे भी ज्यादा जला हुआ है तो ये गहरा जला हुआ भाग है जिसे हमें निकालना ही पड़ता है, और उसको कवर करने के लिए जब तक, क्योंकि इसके पास देने के लिए कोई चमड़ी नहीं है, उसे टेम्परेरीली कवर करने के लिए हमें दूसरे की चमड़ी लगानी पड़ती है। तो अगर हम समझें कि ये त्वचा लिवर और किडनी और नेत्र की तरह हमारे शरीर में परमानेंटली नहीं रह जाती है, ये एक टेम्पररी ड्रेसिंग होती है, पर ये जीवनदायी होती है। ये बहुत ही इफेक्टिव, इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल है, यानी कॉस्ट भी इसकी सबसे कम है बाकी बायोलॉजिकल ड्रेसिंग्स के कंपैरिजन में, और उसके सारे जो मैंने गुण समझाए वो रहते हैं। और मेजर बर्न जिन्हें 40% उसके शरीर के हिस्से के यदि उससे ज्यादा जल गया है तो उस मरीज के लिए ये जीवनदायिनी रहती है। अब कौन इंसान, हम कैसे, डॉक्टर लोकल है, उन्होंने देख के सर्टिफाई किया है कि ये इनकी मृत्यु हो गई है, और ये जो डॉक्टर हैं जो सर्टिफाई कर रहे हैं, ये उस टीम के मेंबर नहीं हो सकते हैं जो हार्वेस्ट करने वाली है, जिसमें कि कोई प्रेजुडिस नहीं है। और फिर मरीज ने खुद ने अपने जीवन की ये इच्छा है कि वो देना चाहते हैं त्वचा, या फिर उनके रिश्तेदारों की ये इच्छा है कि वो त्वचा दान करना चाहते हैं, तो ये वो बताते हैं। और वो कहाँ बताएंगे? वो कुछ एनजीओज होते हैं जो इसमें एक्टिव रहते हैं, या वो चौथराम हॉस्पिटल में डायरेक्टली फोन कर सकते हैं और हॉस्पिटल से उनको रिस्पॉन्स मिलता है। हमें फिर, हम लोग जो हमारे हॉस्पिटल की टीम है वो ये पता करती है कि इनके कॉज ऑफ डेथ क्या था, क्या हम इनका डोनेशन स्वीकार कर सकते हैं। और उसमें कुछ मैं आगे और बताऊंगी, मैं नहीं ले सकता, कोई भी इन्फेक्शन उस त्वचा में भी की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज HIV और हम मिलती है। इसलिए यदि 75 वर्ष से अधिक का इंसान अच्छा तंदुरुस्त और काफी सरफेस जमीन पर बैठना पड़ता है, जो कि बहुत उपयुक्त नहीं होता है काम करने के लिए, और उतना क्लीन एसेप्सिस मिलता नहीं है हमें एनवायरनमेंट में, और रिश्तेदार बीच बीच में आते हैं तो हमें आइसोलेशन भी नहीं मिलता है। बाकी पूरा जो ऑपरेशन के दौरान हम लोग जितनी भी चीजें, जितनी भी एहतियात बरतते हैं वो यहाँ पर भी बरते जाते हैं, और फिर ये निकालते हैं। ये कैडेवरिक स्किन हम लोग जले हुए भाग को पूरी तरह से साफ कर लेने के बाद लगाते हैं। ये लगाई हुई है, इस तरह की होती है डोनर स्किन, जो हम लोग जले हुए भाग पर लगा देते हैं और इससे उसका बचाव कर लेते हैं। ये उसके नीचे घाव भरने में बहुत उपयोगी होती है और 7 से 21 दिन तक लगी रहती है, इसके बाद में निकल जाती है। इसके कई तरीके होते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, पर हमारे बैंक में हम लोग एक बहुत ही सिंपल तरीका अपनाते हैं, जो कि यूरोप के भी स्किन बैंक में, डच स्किन बैंक है, वो लोग भी यही तरीका अपनाते हैं। 85% ग्लिसरॉल में डालते हैं और इसे हम साधारण रेफ्रिजरेटर में 5 वर्ष तक रख सकते हैं। तो हमारे पास काफी लंबी बैंकिंग का समय है, ब्लड से काफी ज्यादा रहता है। अब जो ज्यादा प्रश्न आप लोगों के विचारों में होंगे वो मैंने कुछ इमेजिन किए हैं, और जो लोगों से चर्चा करने के बाद मुझे प्रश्न समझ में आए हैं उनके उत्तर देने का प्रयास करूंगी कि हम मौत के कितनी देर बाद चमड़ी डोनेट कर सकते हैं। तो यूं तो 6 घंटे सबसे अच्छे होते हैं, पर हम 12 घंटे तक भी दान कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी मौत के बाद मैं समझ सकती हूँ कि इंसान एक ट्रैजिक माहौल में रहता है, और उससे ओवरकम होने के बाद परिवार को इसके बारे में सोचना कि हमें त्वचा दान करनी है। उसके बाद बहुत से लोग मना करते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, तो इसमें थोड़ा सा समय जाया होता है। पर ये यदि हम ध्यान में रखें कि हमें ये जितनी जल्दी हो सके ये निर्णय ले लेना है, जिससे कि समय रहते दान दी जा सकती है।
और जो ये अपने को पता कर लेना है कि उन्हें कोई जॉन्डिस तो नहीं थी, कोई HIV का इन्फेक्शन तो नहीं था, चर्म रोग से तो नहीं ग्रसित थे, या किसी इन्फेक्शन से तो उनकी मौत नहीं हुई है, तो फिर इनका दान दिया जा सकता है। क्या ओल्ड पीपल दे सकते हैं? हाँ, हम लोगों ने ली है। ऐसा है, सिर्फ उम्र बढ़ने से चमड़ी की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, पर उसका जो इफेक्ट है प्रोटेक्टिव वो तो रहेगा। तो हम क्यों न लें? यदि कोई देना ही चाहते थे तो हम ले लेंगे। मात्रा जरूर कम मिलती है। मैंने आपको बताया, ये प्रश्न सबके दिमाग में रहता है कि हमारी आंतें बाहर दिखेंगी, क्या हमारा पेट खुला हो रहेगा, हम कैसे उनका अंतिम संस्कार करेंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हम बिल्कुल एक पतली सी लेयर, वेफर थिन लेयर निकालते हैं, जैसे आपने देखी वो लगाई थी हमने। और उसके, क्योंकि मौत के बाद हृदय सर्कुलेशन रुक जाता है, इसलिए कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, तो वहां पर जहां भी त्वचा दान देंगे वहां कोई गंदगी नहीं होगी। और मरीज के शरीर पे हम लोग फिर भी हल्की सी पट्टी कर देते हैं, पर कोई ब्लीडिंग नहीं होती। यदि आपने जीवित रहते, जैसा कि मेरे प्रीवियस स्पीकर डॉक्टर अजय जैन ने कहा कि भाई अपना एक डिजायर करिए कि आपको ऑर्गन डोनेट करना है, तो यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल में आके और अपनी ये राय शेयर करें हम लोगों से, तो हम आपको एक स्किन डोनर कार्ड देंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इसे आप लैमिनेट करा के, एक मैग्नेट लगा के और रेफ्रिजरेटर पे लगा दीजिए, क्योंकि रेफ्रिजरेटर पे हर इंसान, घर का हर मेंबर आता है। आपके चले जाने के बाद रिश्तेदार को वो नंबर ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, तो फिर वो बात नहीं पूरी कर पाएंगे। तो अगर ये कार्ड उनको मिल जाता है बहुत आसानी से, रेफ्रिजरेटर पे मैग्नेट बना के बहुत ही आसानी से मिल सकता है, तो उसमें सारे नंबर भी रहते हैं कि आपको हॉस्पिटल में किससे संपर्क करना है, और ये प्रक्रिया संपर्क करने की बहुत आसान हो जाती है। हम लोग चमड़ी निकालने के पहले शरीर को पूरा नहलाते हैं, तो अपने अंतिम संस्कार में जो एक ही रहता है कि हम मृत इंसान को पूरी तरह से नहला के और फिर तैयार करेंगे, तो नहलाने वाला काम हमारी टीम कर देती है। और ये ड्रेसिंग होने के बाद वो परिवार से उनके पहनाने के कपड़े मांगते हैं, और फिर वो कपड़े पहना के फाइनल राइट्स के लिए पूरा तैयार करके बॉडी हैंड ओवर करते हैं। तो आपको जो बाद में ये विचार होगा कि हम ये पट्टियों के बीच में कैसे करेंगे, तो वो भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कितनी देर लगती है? प्रोसीजर करने में 1 घंटा लगता है, और जब आपने कॉल किया तो आप कितनी दूर हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हमें ट्रैवल करने को 30 मिनट से 1 घंटा लग सकता है। कुछ समय तैयारी के लिए भी लगता है, और लोग तैयार हैं कि नहीं, टीम को भी इकट्ठा करना पड़ता है। तो करीब 2 घंटे का समय हो तो हम लोग ये काम कर सकते हैं। लोग बिल्कुल जब फ्यूनरल के लिए समय है तो बोलते हैं आप जल्दी से आइए और निकाल दीजिए। ये इतना सीधा काम नहीं है, इसमें करीब 2 घंटे का समय लगता है। तो आपको ये डिसीजन सोच समझ के थोड़े से जल्दी लेने की जरूरत है। क्या इसमें कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है? नहीं। जब भी आप डोनेट करते हैं, हम लोग इतने ग्रेटफुल हैं, हम आपके इतने ज्यादा आभारी हैं कि ये इसके लिए, बल्कि हम सब लोगों के सामने भी अप्रिशिएट करते हैं। और जिस इंसान को चमड़ी दी जाती है उससे हमको प्रोसेसिंग एक्सपेंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि इसकी काफी प्रोसेसिंग लगती है, जो कि जिसमें कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है। सो प्रेफरेबली हम लोग अभी कोविड में 20 और 21 में तो हॉस्पिटल में ही जहां बॉडी है वहीं पर कर रहे हैं, क्योंकि मालूम नहीं है कि परिवार में किस किस को कोविड था और हम लोग टीम इन्फेक्ट हो जाए, तो ये नहीं चाहते। पर अभी जैसे घर में भी करना शुरू कर दी है, और बंबई में एक स्पेशल एम्बुलेंस है जिसमें बॉडी को लाके वो लोग करते हैं। ये बात हो गई। हमारे बैंक में अब तक 558 डोनर्स ने पिछले 10 साल में स्किन दी है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और मैं तहे दिल से उन लोगों की आभारी हूँ जिन्होंने इन डोनर्स को प्रेरित किया है दान देने के लिए। 470 मरीजों को इसका फायदा हुआ है, और ये स्किन हमने दूसरे स्टेट्स में भी भेजी है। राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में भेजी, और इंदौर में करीब 10 स्किन लगाई है, और कुछ हम लोग नहीं यूज कर सके। कोविड के बाद 21 हार्वेस्टिंग की गई है, तो ये हमारी टीम के लिए बहुत ही शाबाशी की बात है। हमारे साथ जुड़े मुस्कान ग्रुप, एमके इंटरनेशनल आई बैंक और रोटरी क्लब ऑफ इंदौर की भी मैं आभारी हूं कि उनके सहयोग से ही ये सब संभव हुआ है। इनके बगैर ये संभव नहीं था। और ऑर्गन डोनेशन सोसाइटी की कि उन्होंने हमारे बैंक को
रजिस्टर किया है। आप सबकी भी आभारी हूँ कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया जहां हम लोग लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, उनसे आग्रह कर सकते हैं कि वो अपना ये डोनेशन का प्लेज लें कि वो मृत्युपरांत अपनी और अपने परिवार की त्वचा दान के लिए तैयार रहेंगे। जो अजय जैन सर दूसरे कंट्रीज के बोल रहे थे, तो यूरोपियन कंट्रीज में मैंडेटरी है, 100% डेथ्स में स्किन डोनेशन होता है। इट इज दैट मच। ये हमारा स्किन बैंक है, शायद दुनिया का सबसे छोटा स्किन बैंक है, पर हमारी ये टीम बहुत अच्छा काम करती है और हम लोगों ने बहुत से मरीजों को उससे मदद दी है। तो मैं अंत में फिर से आप लोगों से आग्रह करूंगी कि डोंट टेक योर ऑर्गन्स टू हेवन, हेवन नोज वी नीड देम हियर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे आज इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके अपने ये विचार रखने का मौका दिया। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Shobha ma'am, you included every minute detail, and we never thought such an explanatory session could be possible. But there's nothing that you missed, and there is no expectations at all about how this is going to further take place. But all I know is that there was everything included in the presentation, and I'm sure very hardly people are going to have questions after this skin donation presentation. All questions are already answered. Thank you so much, ma'am. Now I would request Rupal to carry on. Hello, very good evening to all of you. Okay, so honorable guest Dr. Sudhesh Sharda and all my dear friends who are presented here, a warm welcome to all of you. Friends, our guest of honor has made a powerful contribution in the field of laparoscopy. He completed his MBBS from MGM Medical College, Indore, and MS from Gandhi Medical College, Bhopal. He worked at various hospitals under experienced faculty of their field. He started this from the Bombay Hospital, Indore to Oncosurgery at SAIMS, and Indore to Lok Nayak Hospital, New Delhi. He has 2 years of experience in laparoscopic training from Max Hospital, New Delhi, and was involved in more than 5,000 laparoscopic surgery. He is a member of International College of Laparoscopic Surgeon and Fellow of Indian Association of Gastroendoscopic Surgeon. He has so many achievements and more experience in his field. Lastly, I want to add in this that he was awarded with fellowship in advanced laparoscopic surgery in the field of colorectal surgeries. So let's welcome our guest, Dr. Sudhesh Sharda, on live platform with thunderous applause and listen to his life experience and precious words. Thank you. Yeah, thank you. Thank you very much. And thank you, Vijay Social Welfare Society, for giving me an opportunity to speak and to motivate you on the occasion of World Organ Transplant Donation Day. Dr. Ajay Jain sir and Dr. Shobha Chimania ma'am has already explained so beautifully that what is organ donation, how it can be done, what is skin donation, how it can be done. Right? I want to start with कि क्या-क्या problems या क्या-क्या हमारे दिमाग में चलता रहता है. Maybe I am able to answer most of your questions. जो उसी फॉर्म में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जिस फॉर्म में पेशेंट्स या पेशेंट्स के रिलेटिव या जनरल पीपल हम लोगों से डिस्कस करते हैं. टू बिगिन विथ, सबसे पहले बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास में आते रहते हैं कि 2 किडनी 4 किडनी अवेलेबल है ट्रांसप्लांटेशन के लिए, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, एक्सीडेंट हो गया था इन लोगों का, प्लीज कांटेक्ट देम. सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है सोशल मीडिया. ये जो मैसेजेस हैं दे आर नो वे वैलिड. आप कभी उनसे कांटेक्ट करके देखिए, फोन नहीं लगेंगे या वो स्कैम होगा, क्योंकि किडनी या लिवर या किसी भी तरह का डोनेशन इस तरह से नहीं हो सकता विदाउट लीगल राइट्स कि हमारे पास में एक पॉलिथीन बैग है, चलो आज 2 किडनी खरीद के आते हैं. दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट. तो किसी भी डोनेशन के लिए एक प्रॉपर चैनल होता है. उस प्रॉपर चैनल को हम नोटो और सोटो बोलते हैं. नोटो इज द नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन एंड सोटो इज द ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट लेवल पे काम करती है. एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर वर्किंग ऑन इट एंड इट्स अ टोटली लीगल
एंड गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में काम नहीं करती है। इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं। पहला लॉ कि आप अपने ही रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव को आप डोनेट कर सकते हो इफ यू आर गिविंग अ लाइव डोनेशन, जो जैन सर ने बताया था व्हाट इज लाइव एंड व्हाट इज ब्रेन डेथ डोनेशन। तो अगर लाइव डोनेशन करना है तो आप अपने ब्लड ग्रुप रिलेटिव को ही डोनेट कर सकते हो, किसी और को नहीं कर सकते। अगर डिजीज डोनर है या किसी की एक्सीडेंट में ब्रेन डेथ हो जाती है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है, देन इन दैट केस एक ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई होती है जो नोटो और सोटो दोनों के पास होती है, और उनका सीक्वेंस भी डिसाइडेड होता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है लोगों के पास कि अरे जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, जो स्टार्स हैं, जो जिनके पास बहुत पैसा है, उनको पहले मिल जाएगी। ये भी गलत है। लिस्ट की सीक्वेंस बीमारी के आधार पर डिसाइड होती है। जैसे मैं किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट दोनों में हूँ, तो जो पेशेंट जिसका लिवर ज्यादा खराब है या जिसकी किडनी ज्यादा खराब है, उस पेशेंट को प्रायोरिटी मिलती है ब्लड ग्रुप वाइज। ब्लड ग्रुप सबको पता है अपने, ओ पॉजिटिव, ओ बी, ओ ए बी, ए और बी। तो जिसका ओ ब्लड ग्रुप है, अगर ओ की किडनी आई है तो जो उसमें सर्वप्रथम है उसी को मिलेगा, चाहे नीचे कोई भी, उसे कोई मतलब नहीं। दूसरी बात आती है जो बहुत कॉमन है कि मान लीजिए जैसे चरित्रा में हम लोग सारे ट्रांसप्लांट करते हैं, तो कोई क्रिटिकल पेशेंट आया तो सबसे पहला उसका सवाल होगा कि साहब आपके यहाँ तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो आप हमारे मरीज को बचाने के लिए मेहनत ही नहीं करोगे। अब अगर एज ए डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने बता दिया, एज ए डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो एक मरीज को बचाने में जितनी मेहनत नहीं लगती है, उससे ज्यादा मेहनत उस ऑर्गन जो ब्रेन डेड हो चुका है ऑलरेडी पेशेंट, उसको बचाने में लगती है। क्यों? क्योंकि हमें सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं पहले। अब अच्छा, इसमें अगर हम बात करें कि ऑर्गन, शायद जैन सर ने बताया होगा कि कैसे हम डिक्लेयर करते हैं कि ये पेशेंट ब्रेन डेड हो गया है। ब्रेन डेड कैसे हम मान लें इस पेशेंट को, क्योंकि वेंटिलेटर रहता है, वेंटिलेटर मशीन होती है जो श्वास चलाती है, दिल की धड़कनें चल रही है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आता है कि अरे हमारे पेशेंट की तो दिल की धड़कन चल रही है, श्वास लेते हुए तो वो देख पा रहे हैं, तो फिर ये तो हमारा मरीज जिंदा है, आप कैसे बोल सकते हैं कि ब्रेन डेड। तो श्वास, हार्ट चल रहा है, इसीलिए वो अभी लिविंग, अभी वो ब्रेन डेड डोनर की कैटेगरी में आ रहा है। अगर हार्ट भी बंद हो जाता तो सिर्फ वो बॉडी डोनेट कर सकता था। अब हार्ट चल रहा है, दूसरा हमारी मशीनों के कारण, वेंटिलेटर के कारण श्वास चल रही है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो मरीज तो अभी जिंदा है। पर जब हम एक बैटरी ऑफ टेस्ट मतलब करीब 16 टेस्ट होते हैं, वो 16 टेस्ट 4 डॉक्टर की मौजूदगी में 6 घंटे के उपरांत 2 बार लगाए जाते हैं। पहली बार 16 टेस्ट लगाए 4 डॉक्टर्स ने, 4 डॉक्टर्स में आप माने आईसीयू वाले डॉक्टर हैं, ब्रेन के डॉक्टर हैं, एक फिजिशियन होता है, और एक जो उस हॉस्पिटल का हेड है, वो, ये 4 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने 16 टेस्ट से कंफर्म किया, जिसमें एक टेस्ट होता है कि हम वेंटिलेटर हटा के उसके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल से। 6 घंटे बाद में हमने फिर से यही टेस्ट लगाए। जब हमारा कंफर्म हुआ कि ये दोनों टेस्ट में पेशेंट फेल हो गया है, तो हम डिक्लेयर करते कि अब ये रिवर्सिबल स्टेट में नहीं है। रिवर्सिबल स्टेट मतलब, अब यहाँ फिर क्वेश्चन आता है लोगों का, क्या डॉक्टर साहब कॉमा और ब्रेन डेथ सेम है? कॉमा और ब्रेन डेथ सेम नहीं है। कॉमा मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पे वो मूर्छित अवस्था में है, जिसके ठीक होने की पूरी पूर्णतः उम्मीद होती है, पर इसी को हम अंत तक ले जाएं, इस जगह पे पहुंचा दें कि जहां से वो वापस नहीं आ सकता, या वापस जाग नहीं सकता, या उसका ब्रेन काम नहीं कर सकता, उस स्थिति को हम ब्रेन डेथ बोलते हैं। छोटे से एग्जाम्पल में आप माने कि एक गैस के पास में आप खड़े हैं, आपका ध्यान नहीं है, और आपका गलती से आपने हाथ स्टैंड समझ के रख लिया, और गलती से आपका बर्नर पे हाथ रखा गया, तो आपको एकदम से गर्म फील होता है और आप हाथ हटा लेते। दिस आर दी रिफ्लेक्सेस। ये ब्रेन काम करता है कि आपको पता भी नहीं है और फिर भी ब्रेन ने समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ शरीर में चल रही है। सिमिलरली आपका ध्यान नहीं है, कोई आपकी तरफ जल्दी से भाग के आता है, तो आपकी आंखें एकदम से पलक झपक जाती है, वो भी एक रिफ्लेक्स है। ये रिफ्लेक्सेस ब्रेन से कोऑर्डिनेट होते हैं।
तो जब ये रिफ्लेक्स बंद हो जाएंगे, मतलब ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, और इसी तरह से हम डिक्लेयर करते हैं कि ये पेशेंट, मतलब इसमें गलती होने की गुंजाइश नहीं कि गलती से हमने ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया, नहीं वो पेशेंट के वापस आने की उम्मीद है, तो ये कभी भी संभव नहीं है। तो अब जो पहला मेरा क्वेश्चन था कि एक मरीज आया, उस मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ चोइथराम हॉस्पिटल में सब किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, तो आप हमें नहीं बचाओ। तो जब पेशेंट को बचाना है, जीवित अवस्था में है, तो उसको ठीक करना बहुत आसान होता है। आसान मतलब उतना आसान नहीं, पर डेफिनेटली लिटिल बेटर। जब ये टेस्ट होती है, जब हमें कंफर्म होता है कि नहीं अब ये डोनेशन के लायक है, तो जो डोनर हमारी लिस्ट में, जो रिसिपिएंट जो लेने वाला है, जो बीमार है, वो जो हमारी लिस्ट में है, उसको हमको कांटेक्ट करना, उसकी व्यवस्था करके उसको अस्पताल तक लेके आना, अस्पताल में पूरी तैयारी करना, पूरी सर्जरी टीम को तैयार करना, इन सब चीजों में समय लगता है। और इन सब चीजों को जब समय रहता है, वो समय जब उस ब्रेन डेथ पेशेंट को संभालना रहता है, दैट इज डेफिनेटली डिफिकल्ट, इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो ये संभावना है, ये सोचना गलत है कि डॉक्टर साहब हमारे ये अगर हम ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चल रहा है, तो वहां पे हमें नहीं बचाएंगे, दैट इज टोटली रॉन्ग। फिर बात आती है कि अरे मूवीज, आप मुझे लगता है अजय देवगन की मूवीज तो बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। एक बहुत बहुत कॉमन मूवी थी, एक बच्चे को उठा के ले जाते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने, उसकी किडनी निकालते हैं, ठीक है। मतलब ये प्रॉब्लम ही मीडिया से शुरू होती है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये संभव नहीं है। और ना ये संभव है, एक साउथ इंडियन मूवी देख रहा था मैं कि एक हीरो रहता है, वो हार्ट को अपने हाथ में लेके घूमता है, दूसरी जगह से लेके आता है, वो थर्मोकॉल का होता है मोस्ट ऑफ, पर वो फिर फाइट भी करता है। फाइट करते करते उसको ऐसा धक्का लगता है कि वो हार्ट उससे छूट के, खिड़की तोड़ के, ऑपरेशन थिएटर में जो पेशेंट पड़ा है वो सीधा उसके पास जाके उसके अंदर लग गया, लाइटिंग हुई ग्रीन रेड ब्लू, और अचानक से मरीज खड़ा हो गया। सो दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो दिस इज अल्टीमेटली नॉट पॉसिबल। ये ना उस ऑर्गन का ऐसे लाना पॉसिबल है, और ना ऐसे लगाना पॉसिबल है, और ना ऐसे बेचना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बताया मैंने कि इंडियन एक्ट्स ये परमिट नहीं करते हैं, और ये संभव भी नहीं। फिर इसी में क्वेश्चन आता है कि साहब ये तो फॉरेन में ट्रेड होता है। फॉरेन में ट्रेड, आपने ग्रीन कॉरिडोर सुना होगा, मुझे लगता है। ग्रीन कॉरिडोर मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे अगर हमको जाना है, तो सारे हमारे ट्रैफिक्स रहते हैं, लाइट्स रहती है, वी हैव टू क्रॉस देम। ऑर्गन्स में हमारे पास में लिमिटेड टाइम था। लिमिटेड टाइम क्यों होता है कि एक पेशेंट से हमने निकाला तो उसका खून सप्लाई भी बंद हुई। जब तक वो पेशेंट, वो ब्रेन डेथ पेशेंट में था, तब तक उसका हार्ट चल रहा था, उसको ब्लड मिल रहा था। पर जैसे ही वो ब्लड पेशेंट के बाहर आया ऑर्गन, अब वो आइस में रहता है और कुछ केमिकल्स में रहता है, तो उसकी लाइफ है दैट इज वेरी लिमिटेड। एक किडनी की है 6 घंटे, लिवर की है 8 घंटे, ऐसे स्किन की थोड़ी ज्यादा होती है। तो हम एक सीरीज ऑफ इवेंट्स क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रीन कॉरिडोर। ग्रीन कॉरिडोर मतलब कि आज सपोज करिए कि इंदौर से एक लिवर दिल्ली जाना है, या इंदौर से एक अहमदाबाद जाना है एक हार्ट को, तो चोइथराम हॉस्पिटल से इंदौर एयरपोर्ट, ये ग्रीन कॉरिडोर बनेगा, जैसे कि 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट में वो ऑर्गन एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पे उस प्लेन के अकॉर्डिंग वो हार्ट निकलेगा कि जब वो फ्लाई करने वाला है, ताकि वहां टाइम ना लगे। उसको एक्सप्रेस वे से क्लियर किया जाता है 5 मिनट में। वो एयरपोर्ट पे बोर्ड होता है, फ्लाइट में, फ्लाइट चलती है, सारी फ्लाइट्स को अगर रोकना पड़े तो रोका जाता है। वो फ्लाइट पहले उड़ती है, वो जितनी जल्दी पॉसिबल हो वो अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई वहां लैंड होगी। वहां एक ग्रीन कॉरिडोर बनेगा, और वहां से वो ग्रीन कॉरिडोर बन के उस हॉस्पिटल तक मिनट्स में जाएगा। तो अगर आपको कहीं पे भी जाना है, आप मान लो फॉर एग्जांपल आपको मलेशिया ही घूमने जाना, तो इट विल टेक अराउंड 6 आवर्स 7 आवर्स। आप जाओगे, बोर्ड करोगे, पहुंचोगे, उतरोगे और उस अस्पताल तक जाओगे। तो सेल एंड परचेज या फॉरेन ट्रेड इज नॉट पॉसिबल, वो ऑर्गन ही खराब हो जाएगा तब तक। और जो कस्टम्स होते हैं उनको नहीं पता होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उनके पास में एक रिटर्न ऑर्डर होता है कि इस बॉक्स में ऑर्गन जा रहा है, इसलिए इसको सर प्रायोरिटी पे हमको वहां पे पहुंचाना है। तो सेल्स एंड परचेज इज नॉट पॉसिबल इन ऑर्गन डोनेशन। और ना वो जो हीरो बताता है हमारा अजय देवगन की, अरे तुम्हारी तो किडनी निकल गई, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, कि कोई और ऑपरेशन करने गए और कोई और चीज निकाल के भाग गए। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम आई डोनेशन करें या ऑर्गन डोनेशन करें, ये सब बताया, मैम ने भी बताया, सर ने भी, कि डिसफिगरमेंट हो जाता है।
आंखें निकाली तो ऐसे ब्लैक होल दिखेगा, ब्लड आएगा, या ऑर्गन्स निकाले तो जो कट एरिया है वहां से कुछ फ्लूइड आएगा, ब्लड आएगा, पानी आएगा, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। प्रॉपर जब आंख निकालते हैं तो उसमें चीजें ऐसी रखते हैं जिससे कि प्रॉब्लम्स ना हो। जब ये सारी चीजें, जब ऑर्गन्स निकालते हैं तो प्रॉपर स्टिच, प्रॉपर मतलब डिसफिगरमेंट वाली या जो हमारे अंतिम क्रियाएं हैं उनमें करने में बाधाएं आने वाली कोई भी ऐसी चीज नहीं रखते हैं। अब बात आती है कि आई कैन डोनेट और नॉट। एनीवन कैन डोनेट एक्सेप्ट 3 पीपल। जो जिन पेशेंट्स की इन्फेक्शन के कारण डेथ हुई है, ब्रेन डेथ, क्योंकि वो इन्फेक्शन दूसरे में जाने का डर रहता है। दूसरा, जिनको HIV है जो मैडम ने बताया था। और तीसरा, वो पेशेंट्स जिनको कैंसर की समस्या है, तो कैंसर दूसरी जगह होने का डर रहता है, इसलिए ये इन 3 लोगों में पॉसिबल नहीं है। यूजुअली अर्ली ऑफ एज, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा यूजुअली उस एज में नहीं लेते हैं। लेट ऑफ एज यूजुअली 70-80s में नहीं लेते, 60 के ऊपर कोशिश करके नहीं लेते हैं। पर इफ थिंग्स आर गुड, ये इतना प्रीशियस ऑर्गन है, या ऑर्गन डोनेशन इज सो प्रीशियस थिंग कि एक भी ऑर्गन का नुकसान हम नहीं उठा सकते। तो वी असेस द ऑर्गन। अगर ओल्ड एज है, यंग एज है, असेसमेंट है कि ऑर्गन अच्छा है, देन डेफिनेटली वी शुड बी टेक दैट। रिलीजन बात सभी ने बताया, देयर इज नो रिलीजन वो बोलता है कि नहीं, हमें ये ऑर्गन डोनेशन नहीं करना चाहिए। अब बात आती है, मान लीजिए कि आज आप बहुत इंस्पायर हो गए, जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सबको अब विचार आ रहा है कि नहीं, हमको तो ऑर्गन डोनेशन करना है, हमको एक ऑर्गन डोनेशन फॉर्म भरना है, और फॉर्म भर के और हम ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं। 10 दिन बाद मन हुआ कि अरे अब तो ऑर्गन डोनेशन नहीं करना है, मन थोड़ा सा चेंज हो गया है, उस दिन तो भावनाओं में बह गए, राइट? तो अब तो पॉसिबल ही नहीं है रिवर्स होना। दैट इज नॉट द केस। इंडिया में लॉ अलग है यूके और यूएस के कंपैरिजन में, जो सब जगह सब लोगों ने कहा। इंडिया में ऑप्ट इन सिचुएशन है एंड बाकी कंट्रीज में ऑप्ट आउट सिचुएशन। ऑप्ट आउट मतलब अगर आपने यूके यूएस के सिटीजन हो, यू आर बाउंड विद द लॉ कि आपको ऑर्गन डोनेट करना है, अनलेस अदरवाइज आपको कुछ प्रॉब्लम है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, आपने मना किया है, उसके अलावा वो मान के चलते हैं कि अगर आपकी डेथ होती है इन अ कंट्रोल वे, देन डेफिनेटली यू कैन डोनेट, यू हैव टू डोनेट अ ऑर्गन। बट इन इंडिया प्रॉब्लम ये है कि हम ऑप्ट इन सिचुएशन में है कि पहले तो हम मन बनाए, अब हम मन बनाए तो उस दिन तो हम होंगे नहीं। हमारे जो आसपास वाले होंगे जिन्होंने एक्चुअली ये सब चीजें नहीं देखी होगी, उनके पास में बहुत सारे मूवीज के उदाहरण होंगे कि अरे साहब ये हो जाएगा, अरे साहब वो हो जाएगा, नहीं हमको तो नहीं करना। घर परिवार वाले सबसे आगे आ जाते, एंड दैट इज अ सिचुएशन। वो सिचुएशन ही इतनी इमोशनल होती है कि आप बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट या बहुत ज्यादा चीजें नहीं बोल सकते। वैसे ही वायलेंस बढ़ गया कि ये जो करता है वो डॉक्टर ही करता है, अब उसमें भी डॉक्टर बोल दे कि साहब आप ऑर्गन डोनेट कर दो, मतलब ये तो इसीलिए होगा, राइट? तो इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो बहुत सारी सोशल वेलफेयर, जैसे विजय है हमारे यहाँ पे, मुस्कान ग्रुप है, सो दे आर वर्किंग गुड, दे आर वर्किंग हार्ड फॉर दिस ऑल थिंग्स, और उनकी बातें, उनके समझाने के तरीके से चीजें सुधरती। पर जैसा मैंने बोला कि आज आप मन बना लेते हो भावनाओं में बह के, पर आपका मन बदलता है तो एनी डे यू कैन से नो कि नहीं, आप हमारे ऑर्गन को हम नहीं डोनेट करना चाहते। आपका बहुत स्टिफ मन हो गया, बहुत कड़क मन करके आपने बोल दिया कि नहीं साहब मुझे तो डोनेट करना ही करना है, पर एट दी एंड अगर घर परिवार का कोई भी व्यक्ति मना कर देता है तो वो ऑर्गन डोनेशन संभव नहीं है। जब तक कि विलिंगली सब हाँ नहीं करेंगे कि वी आर रेडी, कि आप, इनकी आखिरी इच्छा थी कि अब आपको ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन लेना है, तब तक कोई भी इंडिया में लॉ नहीं है कि हम ऑर्गन डोनेशन के लिए फोर्स कर सकें। हाँ, हार्ट बीटिंग, दैट्स इट। एक और चीज जो नॉर्मली होती है, सबके मन में होता है कि फ्यूनरल डिले हो जाता है, बट वी प्लान अकॉर्डिंगली बिकॉज वी हैव सच अ ग्रेट रिस्पेक्ट टू द डोनर कि वो अपने मन से दे रहा है, मतलब वो उसकी को जरूरत नहीं है देने की, फिर भी दे रहा है। ही इज द दानदाता, राइट? तो दानदाता हमेशा ऊपर ही होता है, तो वी टेक केयर ऑफ दैट, एंड फ्यूनरल के टाइम पे उस हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं। और भी क्वेश्चंस हो तो we are here to discuss। इस चीज के पहले I just want to share a video।
പ്രണവ നന്ദി. നന്ദി. Thank you. Thank you. Thank you. Very inspiring video, sir. And also all that you said was totally very informative. And I'm sure we've learned a lot after this. Though very emotional people like us are, after seeing the video, not actually very inspired by this and would love to bring all of this into action. I have a lot of questions for you in the chat box. So should I start asking them one on one? Please. Starting with Sanskriti, what organ can someone donate when alive? Cancer is one is the lung and part of liver, kidney, and blood donation. The next question is, will being a declared organ after affect the care I receive in a hospital? Hopefully, I have already answered that. Yes. That care will be affected or not. It will not. Definitely, it will not. The next question is, what is the process of organ donation? Right. This is one of the good question, in fact, because हमारी इच्छा तो होती है कि हम डोनेट करें, बट हमें पता ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है. सो आप अगर नेट पे सर्च करें या आप जिस भी जगह पे हैं उस जगह पे मेडिकल कॉलेज में सर्च करें तो यू विल गेट अ डोनर कार्ड. आप डोनेशन के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती है. और नोटो है, देन वी हैव अ मोहन फाउंडेशन, we have multiple NGOs which are working on this organ donation. So we can, and we are here, Dr. Shobha Chimania ma'am, me, Sudesh, and Dr. Ajay Jansan in Chaitra. Next question being, the age limit for skin donation was mentioned by Shobha ma'am. Is there any age limit to donate organs? Usually it's like less than 60 and more than 18 we expect. But if organs are good and disease donor is there, then definitely we should not say no. The next question is from Shrish. Can I donate my organs to a person of the opposite sex? Yes, but it should be in the family. एक इसमें हमारे लॉ में एक पॉइंट है, is like husband and wife are not the blood relative, but they are allowed to. Otherwise, blood relative and only blood relative, they can do. Okay. The next question is, can a person who committed suicide donate an organ? It's very difficult. It's like he has already committed, so he's not no more. He can only donate body because the organs, it's like whenever we get the information is already late. So that person can only donate body to the medical college. The rest, no organ can be donated. The next question is from Rupal. How are organs from deceased donors distributed? How are the recipients matched to the donors? Right. पहले बहुत सारी चीजें हुआ करती थी. एक HLA करके होता है. HLA is like your what medical science believe is like 50% is your mother and 50% is your father. तो HLA matching करके एक चीज होती है जिसमें बहुत सारी चीजें मैच होती है. अगर आप सेम प्रोजेनी, अगर आप आपकी मदर से ले रहे हो या आप आपके फादर से ले रहे हो या दे रहे हो, वाइस वर्सा, तो HLA पहले मैच किया जाता था. पर nowadays things has improved. जो दवा मेडिसिन है they have improved. So अभी more of same blood group, but there are situations जहाँ पे हम दूसरे blood group से भी लेते हैं. That is ABO, incompatible blood group से अलग हटके. So nowadays donation is possible in all the things. Okay, thank you, sir. The next question is from Sonali. If someone wants to donate all their organs, is that possible? And within how much time it should be intimated to the hospital? It's like usually whenever there is a disease and brain dead donor,
that patient most probably will be in the hospital, right? इसमें एक चीज ऐड करनी है कि मान लीजिए ऐसे सेंटर्स पे हम बैठे हैं, ऐसी जगह पे बैठे हैं जैसे उज्जैन है, देवास है, वहां से कोई हॉस्पिटल में एक पेशेंट है जो कि कॉन्शियस नहीं है, कोमेटोज है या डीपली कोमेटोज है, या वहां के डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये ब्रेन डेथ हो रहा है, तो हम शिफ्ट कराते हैं उस पेशेंट को। वो शिफ्ट कराने के बाद में जब हम यहाँ डोनेट कराते हैं तो अच्छी बात यह है कि उस पेशेंट से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। वो न शिफ्टिंग का चार्ज, ना यहाँ आने के बाद के ट्रीटमेंट का या मेडिसिन का चार्ज, वी वेव ऑफ ऑल द चार्जेस फ्रॉम द डोनर, राइट। और जो समय की बात रही तो समय ये कि वो मोस्ट प्रोबेबली हॉस्पिटल में नहीं होगा, तो वंस द बैटरी ऑफ टेस्ट बिटवीन 6 आवर्स एक बार हो जाए, उसके बाद में हम इन्फॉर्म करें, उसके बाद सबका मन बने, एंड देन वी टेक द ऑर्डर। तो यूजुअली घर से, अगर घर पे कोई ऐसी स्थिति है तो यूजुअली ऐसे हमने देखा नहीं कि ब्रेन डेथ पेशेंट घर से ही आ रहा है, वी यूजुअली टेक दैट पेशेंट इनटू द हॉस्पिटल। मैम को अगर कुछ ऐड करना हो, शोभा मैम। Okay. No, for us, we can harvest skin much later after death. So for us, brain dead patient, we are the last person to do skin because all other organs take priority over it. So for us, it's actually 6 hours after the death also. It's okay. The next question is, why do minorities have a higher need for transplants? Oh, this is a long question. I don't think so. There is no way. This is a very... And how is exactly the liver donated? What is the process for that? It's like a part of liver, 2 donations. One is live donation, second is cadaver donation, brain stem death, brain death donation. So if somebody is donating in a live state, liver is a very big organ. Usually it has 2 lobes, one is right one and the left one, वैसे ही लगा होता है। तो normally we take right lobe और इतना लेते हैं कि दोनों को सस्टेन करे, मतलब इतना कि डोनर में भी उतना रहे और रिसिपिएंट में भी उतना बचे, उतना मिल जाए। तो ग्रेजुअली लिवर इज द ओनली ऑर्गन। एक चीज और अच्छी है कि लिवर ही एक ऑर्गन है जो रीजनरेट करता है बनने के बाद में। तो वंस ट्रांसप्लांटेड वो ग्रेजुअली 80% ऑफ द नॉर्मल दोनों के केस में हो जाता है, मतलब हमने 50-50 किया बट वो 80-81-60 तक पहुंच जाता है। सो like that. So that is the process for liver transplant donation. The next question is, can a person who died of a snake bite donate his or her organ? I think no, because of the snake venom, there are so many changes in the blood which usually happen, और वो muscles पे, nerves पे and liver पे effect करते हैं। So maybe kidney, अगर चीजें ठीक है, if things are usually course जो होता है snake bite में ये होता है कि धीरे धीरे सारे organs बंद होते जाते हैं। snake bite का रीजन ही यही है, जब snake bite के venom के पेशेंट्स में डेथ का रीजन ही यही होता है कि ग्रेजुअली थिंग्स बिकम सो बैड कि सारी चीजें बंद होती जाती हैं, आफ्टर दैट पेशेंट कोलैप्स। And what if the death is a normal death? Then it is, I think, 100% possible. Natural death. Also, there's one more question. If the hospital knows that I am a donor, will they still work as hard as they do to save my life? I've already told you. Yes. Our priority is that only. I would like to finish the question answer session here. Sudesh sir. Sorry to interrupt. I just want to add on to one of the myth. अगर लाइव डोनेशन हम करते हैं तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आगे विल लाइफ बी एज नॉर्मल एज प्रीवियस टू द डोनेशन, कि अगर हमने डोनेट कर दिया, लिवर डोनेट किया या किडनी डोनेट की, तो इज इट पॉसिबल टू लिव नॉर्मली, या घर में रहना पड़ेगा, या कोई मेडिसिन चलेगी, या रिस्ट्रिक्शंस होंगे, लाइक दैट। यूजुअली देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यूजुअली नहीं, इट्स देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन आफ्टर डोनेशन। आपने किडनी डोनेट की या लिवर डोनेट किया, यू विल बी एज नॉर्मल एज एवरीबडी एल्स इज। बाहर का खाना, सराफा जाना, घूमना, वॉक, everything you can, wear everything, means running, jogging, anything and everything you can.
you are allowed. That's it. Thank you, sir. Again, a very informative and important point. With that, I, on behalf of Vijay Social Welfare Society, would like to give my heartfelt and most sincere thanks to the Management Committee of Choitram Hospital and Research Center. I would like to express my gratitude to Dr. Sunil Chandiwal, the Director of Medical Services, Mr. Anil Lakhwani, Assistant Director of Health Services, Mr. Vinay Dubey, who gave us their valuable time from their busy schedule, and Jaivan sir, who graced us on this occasion and supported us throughout the planning of this event. I also want to thank our speakers, Dr. Ajay Jain, Dr. Shobha Chimania, and Dr. Sudesh Sharda for clearing our doubts on the topic and making us aware about something so informative and important. My very sincere thanks to our distinguished guests and friends who were with us throughout in this event. Further, a big thanks to the President of VSWS, Srimati Tilotama Tare, who gave us the opportunity to organize this session. I would like to place my hearty thanks to all the volunteers, especially Ms. Sanskriti Tare, Shrish Cherry, Mrs. Rupal Khandelwal, and all the participants because of whom this meet was possible. I show appreciation to the people who have been the strength of this informative session. We thank you for being with us. It has remained a pronounced pleasure. Have a great day ahead. Thank you, sir. Thank you so much for being with us.